Have you ever wondered what it would be like to lose one of your senses? Or, what if you could have just a few days to see the world through new eyes? Today, we are diving into an inspiring essay by Helen Keller called 3 Days to See. This powerful piece shares her thoughts on what she would do if she could see for just 3 days, and it encourages us to appreciate our senses. Let's start by experiencing nature. The essay starts with Helen Keller explaining how she finds joy in touching things, even though she is blind. She feels the shape of a leaf, the smooth bark of a tree, or the rough surface of a pine. In spring, she touches tree branches to find buds, which show nature waking up after winter. Sometimes, she feels a bird shaking with song on a branch, which makes her happy. However, she wishes she could see these things, as sight would show her even more beauty. She imagines having 3 days of sight and divides them into three parts. On the first day, Helen wants to see the people who have made her life special with their kindness and friendship. Since she cannot see, she knows her friends by touching their faces, feeling if they are happy or sad. She wishes to look into their eyes to understand their true feelings, calling eyes the window of the soul. This day is about spending time with loved ones and appreciating their importance in her life. Moving on to the second day, Helen would wake up early to watch the sun rise when night turns into day with beautiful light. She plans to visit museums to learn about the world's past and present. In museums, she would see models of old animals like dinosaurs and learn about how people have grown smarter over time. This day is about enjoying nature's beauty and understanding the history of life. Now, for the third day, Helen would go to a busy city to watch people living their daily lives. Standing at a street corner, she would look at their faces to see if they were smiling, serious, or sad. She feels happy seeing smiles, proud of people working hard, and kind towards those who are struggling. This day is about understanding the lives of ordinary people and feeling connected to them. As the 3 days come to an end, Helen knew she would become blind again. She also suggests listening to music, touching things, smelling flowers, and tasting food as if those senses could be gone. She understands that 3 days are not enough to see everything she wants. Helen tells people who can see to use their eyes as if they might lose their sight tomorrow. She believes that using all senses fully helps us find happiness in life, but she thinks sight is the most wonderful sense. The moral of the story teaches us to appreciate our senses and use them to enjoy the world around us. Helen Keller demonstrates that even tiny things, like a leaf or a smile, can be very special. By reflecting on what life would be like without a sense, she helps us understand the value of what we have. The story encourages us to show kindness to those who cannot see or hear. Finally, it inspires us to live each day with a sense of wonder and gratitude. In summary, Helen Keller's essay reminds us to cherish our senses and the beauty around us. By sharing her imagined experiences, she encourages us to find joy in everyday moments and show kindness to others. We hope that you have understood the topic. You can now study chapter notes, watch video lectures, and solve MCQ tests of this chapter on EduRev to ensure you score well in your school exams. And that's not all. You also get amazing courses for maths, science, English, Hindi, and much more for class 4. Thank you. Hello everyone.
आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। तो हम कर रहे हैं क्लास 7th की नई बुक है इंग्लिश की पूर्वी, उससे यूनिट 1, और आज चैप्टर का नाम है 3 days to see। पूरा चैप्टर हमने अच्छे से पढ़ लिया है। अब बारी इसकी क्वेश्चन आंसर्स की। तो आपने देखा कि हेलन केलर के बारे में चैप्टर है कि कैसे उनको दिखाई नहीं देता पर वो चीजों को टच करके, फील करके, उस चीज का टेक्सचर को फील करती है। अपने दोस्तों के जो फेस है, उसकी जो फेस लाइन है उसको टच करके महसूस करती है। इनको इमोशंस को भी वो टच करके महसूस कर सकती हैं। तो चलिए अब कर लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। सो पहले हमारे पास लेट अस डिस्कस। तो फर्स्ट है वर्क इन पेयर। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट आर ट्रू फ्रॉम द वंस गिवन बिलो। अब आपको बताना है कि जो स्टेटमेंट है वो सही है या गलत है। ओके, सो पहला है द ऑथर एक्सप्रेस अ डीप लॉन्गिंग टू एक्सपीरियंस द वर्ल्ड थ्रू द सेंस ऑफ हियरिंग। कि जो ऑथर है, जो हेलन केलर बता रही है, वो कैसे बताना चाहते अपने एक्सपीरियंस को? सुन के। क्या वो कान चाहती है कि उसको कान मिल जाए? तो इसमें क्या हो जाएगा? नहीं, क्योंकि उसको तो भाई अपनी आंखें चाहिए। वो आंखों से देख के एक बार वर्ल्ड को फील करना चाहती है। नेक्स्ट है द ऑथर वुड लाइक एक्सप्लोरिंग द सिटी ओनली टू ऑब्जर्व हाउ द पीपल आर सफरिंग। क्या सिर्फ वो दूर से ये देखना चाहती है कि लोग कैसे परेशान हैं? नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं देखना चाहती। वो देखना चाहती है कि जो लोग अपना काम करने जाते हैं वो कैसे अपना काम करते हैं। नेक्स्ट है द ऑथर वुड स्पेंड द first day seeing the people whose kind heartedness and friendship have enriched her life। क्या वो पहले दिन जब उसको आंखें मिले तो क्या देखना चाहती है कि जिन लोगों की दयालुता से, जिन लोगों की कंपेनियनशिप से या फ्रेंडशिप से उसकी लाइफ अच्छी हुई है, क्या वो ये सब देखना चाहती है? तो हाँ, वो सबसे पहले अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स को देखना चाहती है जिनकी वजह से उसकी लाइफ अच्छी हुई है। द ऑथर एक्नॉलेज दैट इवन इन 3 days she would not be able to see everything। कि जो ऑथर है उसने ये महसूस किया कि 3 दिन में उसने वो कुछ नहीं देख पाई जो वो देखना चाहती थी। तो हाँ, उसको बहुत कुछ ऐसी चीज देखनी थी जो वो 3 दिनों में नहीं देख पाई। The author feels that everyone can find the greatest joy merely by the sense of touch। अब ऑथर कह रहे हैं कि सिर्फ हम टच करके जितना भी हम इंजॉय कर सकते हैं, उस चीज को टच करके सेंस कर सकते हैं। तो नहीं, हमें अपनी 5 सेंस का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा अगर हम किसी चीज को बिल्कुल पूरी तरीके से उसको एंजॉय करना चाहते हैं। The author advised those who can see to appreciate every moment as if they might lose their senses tomorrow। अब यहाँ ऑथर यही कहना चाहते हैं कि एक इंसान को ऐसे अपनी जो भी देखने की क्षमता है या सुनने की क्षमता है उसका ऐसे इस्तेमाल करना चाहिए जैसे कि कल उसको उस सेंस का कोई इस्तेमाल नहीं रहेगा। तो हाँ, वो यही चाहते हैं। ऑन द 3rd day द ऑथर वुड लाइक टू ऑब्जर्व पीपल इन देयर डेली लाइव्स एंड अंडरस्टैंड द एक्सपीरियंस। तो हाँ, 3rd day तो वो यही चाहती थी कि वो आराम से बैठे, ऑब्जर्व करें कि लोग अपने डेली रूटीन में कैसे काम करते हैं, उनको कैसे एक्सपीरियंस होते हैं। Complete the table given below with what Helen Keller wanted to do on the 3 days if she had sight। अब हमें तीनों दिन का बताना है कि वो तीनों दिन क्या क्या करना चाहती थी। So पहले दिन see the people she loves, कि सबसे पहले वो उन लोगों को देखना चाहती थी जिसको प्यार करती है, जो उनको प्यार करते हैं। Know her friends from the feel of their faces, कि वो जिन दोस्तों को सिर्फ टच करके, फील करके महसूस करती थी, आज उनको देखना चाहती है। Observe their kindness and warmth, की उन लोगों की जो दयालुता है, जो उनकी गर्माहट है उनके हाथों की, वो देखना चाहती थी। एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड सराउंडिंग, और जो आसपास की ब्यूटी है नेचर की, उस सराउंडिंग को देखना चाहती थी। दूसरे दिन अराइज विद द डॉन, की सुबह ही खड़ी हो जाती है। विटनेस द सनराइज, सनराइज देखती है। विजिट म्यूजियम एंड आर्ट गैलरीज टू सी हिस्ट्री एंड ब्यूटी। अब सबसे अच्छा तरीका होता है अपने पास्ट प्रेजेंट को देखने का कि आप म्यूजियम में चले जाएं। म्यूजियम में जाके आप आर्ट गैलरी में देख रहे हैं कि भाई आज से पहले अभी क्या था और अब चीजें क्या है।
लर्न थ्रू द आईज अबाउट नेचर एंड आर्ट, और वो नेचर की जो नेचर है उसको अपनी आंखों से देखना चाहती है। थर्ड डे, ऑब्जर्व पीपल इन देयर डेली लाइफ, कि भाई लोग अपने डेली लाइफ में क्या करते हैं। वॉक थ्रू द स्ट्रीट, गलियों पे चलना। वॉच अ प्ले टू अंडरस्टैंड इमोशंस थ्रू एक्सप्रेशंस। एप्रिशिएट एवरीडे ह्यूमन लाइफ, कि जो लोग रोजमर्रा की जिंदगी में क्या काम करते हैं वो सब वो देखना चाहती है। तो जितना सिंपल वर्ड्स में आप लिखोगे आपको चीजें उतनी ही सिंपल में समझ में आएगी। ठीक है। The author says that you need eyes to be able to see the true self of a person. Therefore, she referred to the eyes as window of the soul. How is the narrator able to understand the feeling of a person? अब देखो, ये सच में है कि जो आंखें होती है वो हमारा एक तरीके से आईना होता है। हम दूसरे की आंखों में देख के महसूस कर लेते हैं कि उसको कौन से इमोशन अभी उस पर हावी हो रहे हैं, कि वो खुश है, खुश होगा तो उसकी आंखें ब्राइट दिखाई देगी, सैडनेस उसके आंखों में अपने आप ही दिख जाती है, अगर वो रोया है या रोई है तो उसकी आंखों में हल्की सी नमी दिखाई देगी। तो यहाँ पे जो ऑथर है उन्होंने आंखों को किस चीज का एक रेफर किया है, विंडो ऑफ द सोल, आत्मा में झांकने की खिड़की। ठीक है। तो क्या सच में ऐसा होता है कि हम किसी की आंखों को देख के उसकी फीलिंग्स को समझ सकते हैं? सो इवन दो हेलन केलर वाज ब्लाइंड एंड डेफ, शी हैड एन इनक्रेडिबल एबिलिटी टू अंडरस्टैंड पीपल। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जब हमारे अंदर किसी एक चीज की कमी होती है ना, तो हमारी जो बाकी सेंसेस होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रोंग हो जाती है। हालांकि वो ब्लाइंड है, ठीक है, और डेफ भी है, बट शी हैड एन इनक्रेडिबल एबिलिटी टू अंडरस्टैंड पीपल, पर लोगों को समझने की उसकी क्षमता बहुत तेज है। शी कुडंट यूज हर आईज टू सी इनटू अ पर्सन सोल, कि किसी इंसान की आत्मा को, उसकी प्योरिटी को देखने के लिए उसको आंखों की जरूरत नहीं है, बट शी फाउंड अदर वे टू सी देयर फीलिंग। उसके पास और भी बहुत से रास्ते हैं दूसरे की फीलिंग्स को समझने के, देखने के। इवन दो शी कुड नॉट यूज हर आईज, हेलन केलर यूज टच, ऑब्जर्वेशन, इम्पैथी टू अंडरस्टैंड पीपल्स इनर इमोशंस एंड देयर सोल, कि वो लोगों के सोल को मतलब अपनी टच से, अपनी ऑब्जर्वेशन से, अपनी इम्पैथी से समझ सकती है। ठीक है। लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। Read the extract given below and answer the questions that follow. I feel the delicate symmetry of a leaf. I pass my hands lovingly about the smooth skin of a silver birch or rough shaggy bark of a pine. In spring, I touch the branches of trees, hopefully in search of a bird. The first sign of awakening nature after her winter sleep. Occasionally, I am very fortunate. I place my hand gently on a small tree and feel the happy queer of a bird in full song. तो what does that delicate symmetry of a leaf symbolize? कि जो delicate symmetry of leaf की वो क्या symbolize करती है? So means the leaf is nicely shaped and balanced on the both side. कि जब आप किसी पत्ती को आप टच करते हैं, ठीक है, आप अभी भी इस चीज को करके देखते कि अगर आप किसी पत्ती को टच करते हैं तो उस पे जो पैटर्न बने हुए हैं, जो उस पे सिमेट्री बनी हुई है, वो बिल्कुल एक तरीके से कैसी है, बिल्कुल क्या है, शेप्ड और बैलेंस्ड है। ठीक है, ये आप समझ लो कि हमारे पास कोई लीफ है और उस पे जो स्ट्रक्चर या पैटर्न बने हुए हैं वो बिल्कुल बैलेंस्ड है और शेप्ड है। ऑन बोथ साइड इट शोज हाउ ब्यूटीफुल एंड परफेक्ट नेचर इज। ये दिखाता है कि जो नेचर है वो कितनी सुंदर है, कितनी परफेक्ट है। हेलन केलर फील्स दिस ब्यूटी थ्रू हर हैंड्स बिकॉज शी कैन नॉट सी विद हर आईज, कि वो अपनी आंखों से देख नहीं सकती पर वो अपने हाथों से टच करके उस सिमेट्री को फील कर सकती है। तभी तो बोला आई फील द डेलिकेट सिमेट्री ऑफ अ लीफ। ओके, list two phrases from the extract that describe the texture of object in nature. तो आपने पीछे देखा स्मूथ स्किन ऑफ अ सिल्वर बर्च और रफ और शैगी बार्क ऑफ अ पाइन। तो यहाँ पे यही दो लाइन है जो टेक्सचर बताती है नेचर का, स्मूथ स्किन ऑफ अ सिल्वर बर्च एंड रफ शैगी बार्क ऑफ पाइन। ठीक है, complete the sentence appropriately. The phrase awakening nature after her winter sleep refer to, इसका क्या मतलब है? So the beginning of spring when plants start to grow and the flowers begin to bloom, कि अब जो सर्दी है वो खत्म हो चुकी है, स्प्रिंग सीजन आ चुका है और अब क्या है, जो प्लांट्स है वो ग्रो करना, वो ब्लूम करना स्टार्ट हो गए हैं।
ठीक है। व्हाट इज द टोन ऑफ द राइटर इन दिस एक्सट्रैक्ट, कि इस जो हमने पैराग्राफ पढ़ा है उसमें राइटर की टोन क्या है, क्या बताया, तो एडमायरिंग है, नेचर की प्रशंसा कर रहे हैं। एडमायरिंग क्या होता है, प्रशंसा करना, कि यहाँ पे नेचर को एडमायर करे ना, स्मूथ स्किन ऑफ अ सिल्वर बर्च, रफ शैगी बार्क ऑफ अ पाइन, अवेकनिंग नेचर आफ्टर हर विंटर स्लीप। तो इन चीज से पता चले कि जो ऑथर है वो नेचर के प्रति कितना एडमायरिंग है। The next day I should arise with the dawn and see. Dawn का मतलब होता है सुबह, और इसका अपोजिट होता है डस्क। डस्क का मतलब क्या होता है, शाम। बच्चे इन्हीं में कंफ्यूज हो जाते हैं, डॉन किसको बोलते हैं और डस्क किसको बोलते हैं। सी द थ्रिलिंग मिराकल, मिराकल होता है चमत्कार, by which night is transformed into days, कि एक मिरेकल होता है ना, जैसे सुबह होती है कि रात खत्म हो गई और जो सूरज की रोशनी उसने सारी चीजों को लाइट से भर दिया। I should behold with awe the magnificent panorama, panorama होता है दृश्य, और behold होता है देखना, कि मैं जरूर देखना चाहूंगी कि जो इतना भव्य, एक मैग्निफिसेंट क्या होता है, भव्य जो दृश्य होता है सुबह सुबह का, जब सूरज की रोशनी हर चीज को जगा देती है, जो धरती पर सोए हुए होते हैं, तो वो देखना चाहती है। दिस डे आई शुड डिवोट टू अ हैस्टी ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड। हैस्टी मतलब बहुत ही जल्दी से, ईगरली, कि उसको बहुत जल्दी है इन चीजों को देखने की, इन ग्लिम्स को, इन दृश्य को देखने की। क्यों? क्योंकि वो सुबह सुबह थोड़ी देर का नजारा होता है, उसके बाद तो फिर सब कुछ चमकने लग जाती है। आई शुड वॉन्ट टू सी द peasant of man's progress and show I should go to the museum, की जो वो क्या देखना चाहती है, मैन की प्रोग्रेस देखना चाहती है कि उसने क्या क्या चीजें की है अब तक, और वो उस चीज को देखने के लिए कहाँ जाना चाहती है, म्यूजियम में जाएगी। The word thrilling has been used with miracle, एक वर्ड यूज किया गया है thrilling, और किसके साथ, miracle के साथ। So which of the following word does not match with the word thrilling? thrilling का मतलब होता है एक्सपीरियंस, टेल, एडवेंचर, बट इसका कोई मतलब नहीं होता नॉलेज के साथ, ज्ञान से इसका कोई मतलब नहीं है। थ्रिलिंग एक्सपीरियंस, थ्रिलिंग टेल, थ्रिलिंग एडवेंचर, ठीक है। सो व्हाई डज द राइटर रेफर टू द अर्थ एज स्लीपिंग अर्थ? अब राइटर ने, ऑथर ने अर्थ को स्लीपिंग अर्थ कहा है, क्यों? सो ड्यूरिंग विंटर नेचर बिकम्स क्वाइट एंड स्टिल, कि जब विंटर होती है तो जो नेचर होती है वो शांत और स्थिर हो जाती है। ट्रीज लूज देयर लीव्स, और जो पेड़ है उन्होंने अपनी पत्तियां खत्म कर दी हैं। फ्लावर्स स्टॉप ब्लूमिंग, फ्लावर्स में कोई भी फूल नहीं आ रहा है, मतलब प्लांट में कोई फूल नहीं आ रहा है। एनिमल्स भी रेस्ट करते हैं, क्यों? ठंड है। इट सीम्स लाइक द अर्थ इज अस्लीप अंटिल स्प्रिंग कम्स एंड एवरीथिंग स्टार्ट ग्रोइंग अगेन, ठीक है। Complete the sentence with an appropriate reason. The writer wishes to dedicate the day to a brief look at the present past world because she wanted to understand and appreciate the beauty and progress of human life throughout time. कि पहले दिन उसने नेचर को देखा, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में वो नेचर को देख रही है। उसके बाद जो थर्ड डे है उसमें वो देखना, जो सेकंड डे सॉरी, उसमें वो देखना चाहती है कि ह्यूमन ने कैसे प्रोग्रेस की है, उसने कैसे अपने कार्य को अच्छे से संभाला है, उस ब्यूटी को, उस प्रोग्रेस को वो विटनेस करना चाहती है, ठीक है। व्हाई डज द राइटर यूज शुड मल्टीपल टाइम इन द एक्सट्रैक्ट, कि बार बार उसने इस पैराग्राफ में शुड का इस्तेमाल किया है, क्यों? इसमें आ जाएगा द राइटर यूजेस शुड मल्टीपल टाइम टू एक्सप्रेस what she would do if she had the chance to see, कि अगर उसको चांस मिले तो वो क्या करना चाहेगी या उसको क्या करना चाहिए। एग्जैक्टली शुड का इस्तेमाल कब होता है? चाहिए, ठीक है, ये मॉडल है। एंड ऑल्सो टू गिव एडवाइस और सजेशन, और शुड का इस्तेमाल हम तब भी करते हैं जब हमें एडवाइस देनी चाहिए या एडवाइस देते हैं, सजेशंस होते हैं। टू दोज हु कैन सी एनकरेजिंग देम टू वैल्यू देयर सेंस ऑफ साइट। एक तो होता है कि हमें ये चीज करना चाहिए, ठीक है, तब भी हम शुड का यूज करते हैं। जब एडवाइस देनी हो, जब सजेशंस देने हो, तब भी हम शुड का इस्तेमाल करते हैं कि तुम्हें अपने मम्मी पापा की सेवा करनी चाहिए, तुम्हें बड़ों से अच्छे से बात करनी चाहिए। तो यहाँ हम एडवाइस दे रहे हैं, सजेशंस दे रहे हैं, तुम्हें अपना काम अच्छे से करना चाहिए ताकि तुम पीछे ना रहो। तो जब हम ऐसी बातें करते हैं, जब एडवाइस देते हैं, जब सजेशन देते हैं, जब हम कोई चीज कहते हैं कि हाँ भाई करना चाहिए, तुम्हारी ये ड्यूटी है, तो हम वहां शुड का इस्तेमाल करते हैं। The sense of touch make up for the
lose of sight and hearing. Explain this statement with reference to the text. The sense of touch make up the lose of sight and hearing. कि जब हम किसी को टच करके फील करते हैं ना, तो हमारी जो सुनने की क्षमता है, हियरिंग क्षमता है, वो थोड़ी सी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। क्यों? हम उसको टच करके फील कर रहे हैं। सो हेलन केलर कुड नॉट सी और हियर, कि वो देख और सुन नहीं सकती, बट शी एक्सपीरियंस्ड द वर्ल्ड थ्रू हर सेंस ऑफ टच. She could feel the smoothness of a birch tree, the rough bark of a pine. अच्छा देखो, एक बात और ध्यान रखना, जो चीजें हेलन केलर अभी हमें बता रही है ना, हमारी आंखें, हाथ, हमारे कान, हमारा जो जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं, उनके होते हुए भी हम इस चीज को फील नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि वो वहां टच करके उसको बिल्कुल महसूस करना चाह रही है कि वो चीज एग्जैक्टली कैसे दिखती होगी और कैसी है. बल्कि हमारे पास आंखें भी है, हम टच भी कर रहे, पर हम फिर भी इतना डीपली नहीं बता पाएंगे जितना डीपली हेलन केलर उसको फील कर रही है. कि वो देख और सुन नहीं सकती है, बट वो एक्सपीरियंस करके बता रहे वर्ल्ड को थ्रू हर सेंस ऑफ टच. शी फील द स्मूथनेस ऑफ ए बर्च ट्री, the rough bark of a pine, and even the flutter of a bird singing on a branch. Touch became her way to understanding beauty, emotion, and life around her. कि उसके पास तो उसका एक ही सेंस है और वो है टच करना, तो वो उसके हिसाब से देख के बता सकती है, फील करके बता सकती है कि ब्यूटी, इमोशन और लाइफ. Why does the author believe that the sense of sight is the most wonderful? अच्छा, यहाँ ऑथर लास्ट वाले पैराग्राफ में इस चीज पे बहुत इम्फेसिस करता है कि जो साइट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. सभी सेंस ऑर्गन्स में सबसे इंपॉर्टेंट साइट है. द ऑथर बिलीव साइट इज द मोस्ट वंडरफुल सेंस बिकॉज इट अलाउ अस टू सी फेसेस ऑफ लव्ड वंस, ब्यूटी ऑफ नेचर, आर्ट, एंड द डेली एक्टिविटीज ऑफ लाइफ. She feel that people often take their sight for granted, and if she had it for even a short time, she would treasure every moment. कि हालांकि जिन लोगों के पास आंखें होती है वो इसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, उनको महसूस ही नहीं होता कि उनके लिए आंखें कितनी जरूरी होती है. होता है ना कि हम जवानी में इसको मोबाइल देख के, स्क्रीन देख के ऐसे अपनी आंखों खराब कर लेते हैं, बाद में धीरे धीरे चश्मा चढ़ने लग जाता है, हमारी साइट्स कमजोर होने लग जाती है, तो हमें फील होता है कि देखो आंखें कितनी इंपॉर्टेंट है. तब हम स्टार्ट करते हैं कि किससे हमारी साइट बढ़ेगी, ऐसी चीजें खाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, और यही चीज हम स्टार्टिंग से करते रहे. तो ये किसी भी चीज को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है. दिस इज अ ट्रीजर. इसी के ही वजह से हम सारे मूवमेंट्स को एंजॉय कर पाते हैं, अपने लव्ड वंस को देख पाते हैं, ब्यूटी, जो नेचर की ब्यूटीज को देख पाते हैं, अपनी डेली एक्टिविटीज को अच्छे से कर पाते हैं. तो इसीलिए ऑथर कहते हैं कि जो सेंस ऑफ साइट है वो बहुत ही वंडरफुल है. हाउ माइट द ऑथर्स ओपिनियन ऑन मेकिंग द मोस्ट ऑफ आवर सेंसेस गाइड एज टू बी काइंडर टुवर्ड्स पीपल विद स्पेशल एबिलिटीज. सो हेलन केलर वर्ड्स रिमाइंड अस दैट पीपल विद स्पेशल एबिलिटीज can still experience and enjoy life deeply. कि हेलन केलर के ही वर्ड है जो हमें रिमाइंड कराते हैं कि जो लोग होते हैं जिनके पास स्पेशल एबिलिटीज होती हैं, मतलब उनको स्पेशल एबिलिटीज के साथ ही बोलेंगे, वो भी जितनी चीजें हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, उन्हीं की तरह वो भी हर चीज को एक्सपीरियंस कर सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं लाइफ को. बट उनका जो इंजॉय करने का तरीका है वो डिफरेंट होगा. हर एक्सपीरियंस टच टीच अस टू बी मोर अंडरस्टैंडिंग, पेशेंस, रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स दोज हु फेस चैलेंजेस, एंड टू नेवर टेक आवर ओन एबिलिटीज फॉर ग्रांटेड. कि यहाँ पे हैंकर यही कहती है कि आपके पास देखने की क्षमता है, फील करने की क्षमता है, आपके पास जो भी एबिलिटीज है उसको फॉर ग्रांटेड मत लो, बल्कि उसको इनहेंस करो, उसके लिए शुक्रिया अदा करो और लोगों को भी एक अलग नजरिए से देखो. ऐसा नहीं है कि आपके अंदर पेशेंस ही नहीं है, रिस्पेक्ट ही नहीं है, अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है. नहीं, कि अगर थोड़ा सा कोई इंसान आपको ऐसे दिखता है तो उसके प्रति आपका जो नेचर है वो थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए. डिफरेंट इन द सेंस कि आप उसको अंडरस्टैंड कर सके, थोड़ा पेशेंस, क्यों वो चीजों को आराम आराम से करेंगे या करेगा. रिस्पेक्टफुल होना चाहिए. What is the significance of imaging the lose of a sense according to the author? तो इसका क्या कारण है? So according to Helen Keller, imagine the loss of a sense
हेल्प्स पीपल रियलाइज इट्स ट्रू वैल्यू, कि जब हमसे कोई चीज गुम हो जाती है ना, खत्म हो जाती है, हमारे पास नहीं होती है, तब हमें उसका रियल वैल्यू पता चलता है. व्हेन पीपल प्रिटेंड दे माइट लूज देयर साइट और हियरिंग टुमारो, दे बिगिन टू नोटिस, अप्रिशिएट द ब्यूटी एंड डिटेल अराउंड देम मोर क्लियरली. अब कभी कभी कार्टून्स में या ऐसी वीडियोज में भी दिखाया जाता है ना, फिल्म से भी दिखाया जाता है कि एक इंसान को पता चल जाता है कि कल उसको ना ये पावर उसको खत्म हो जाएगी, तो वो उस एक दिन को ऐसे जीता है कि जैसे ये ही उसका लास्ट डे है. आज वो सारी चीजें देख लेगा, सीख लेगा, समझ लेगा, सुन लेगा, सबसे मिल लेगा. तो यही है कि जब हमें कोई चीज हमसे छूट जाती है या लूज हो जाती है, तभी हमें उसका रियल वैल्यू पता चलता है. अब हेलेन के पास आंखें नहीं है, तो उसको अपनी आंखों का बहुत वो है कि हाँ भाई आंखें होनी चाहिए. How does the author encourage people to approach their everyday sensory experience, कि हमें हम रोजमर्रा की चीजें एक्सपीरियंस करते हैं ना अपने सेंसरी ऑर्गन से, तो वो हमें कैसे फील करना चाहिए, कैसे हमें करना चाहिए. सो द ऑथर एनकरेज पीपल टू स्लो डाउन, कि इतना जल्दी मत भागो, थोड़ा सा अटेंशन पे करो, है ना. सो व्हाट दे सी, हियर, स्मेल, टेस्ट एंड फील. हमने कल पूरे चैप्टर को पढ़ते हुए मैंने बताया था कि आप एक बार अपनी आंखें बंद करो, अपने आसपास चीजों को महसूस करो, कौन सी आवाज आ रही है, किसी चीज को टच करके देखो कि जब आप उसको आंखों से देखते हैं तब उसका फील कैसा है, और जब आप उसको आंख बंद करके टच कर रहे हैं तो क्या आप उसको पहचान पा रहे हैं, या उसका टेक्सचर या उसका शेप या कुछ उसको स्मूथनेस को फील कर पा रहे हैं. तो हमें थोड़ा सा स्लो डाउन होना चाहिए, अटेंशन पे करनी चाहिए, बिल्कुल हेस्टी नहीं रहना चाहिए. शी reminds us that by noticing these details we can enjoy life more and feel more connected to the world around us. अब कोई कहे कि सब कुछ ऐसे, तो कुछ भी ऐसे नहीं बना, हर चीज के पीछे एक रीजन है, हर चीज की अपनी ब्यूटी है. तो अगर हम थोड़े स्लो डाउन होंगे, अटेंशन पे करेंगे, तो चीजें हमें अच्छे से समझ पाएंगे हम चीजों को, और उनसे कनेक्ट फील कर पाएंगे. What do the author's choice for the 3 days tell us about her values and priorities? अब जो 3 दिन ऑथर ने चूज करे, ठीक है, और 3 दिनों से क्या क्या टास्क किया, क्या क्या चीजें देखी, तो इसे क्या पता चलता है, क्या वैल्यूज पता चलती है, क्या उसकी प्रायोरिटीज पता चलती है. तो सबसे पहले कि द ऑथर चॉइसेस शो दैट शी वैल्यू सिंपल जॉय, माइंडफुलनेस, being present in the moment. She believes in truly experiencing life through the senses, appreciating nature and connecting with people and places on a deeper level. ठीक है. Sensory words are descriptive. They describe how we experience the world, how we see, hear, smell, taste or feel something. Sensory word का मतलब ये कि हमारे पांचों सेंस ऑर्गन. Complete the following table with sensory word from the text in column 2 for the 5 sense in column 1. Add new words in column 3. ठीक है. So what you see, panorama मतलब दृश्य, कलरफुल है, ब्राइट है, स्पार्कलिंग है. What you hear, म्यूजिक, चर्पिंग, रसलिंग, बजिंग. ठीक है. हमें भरने हैं, कॉलम भरने की. इसमें कि आपने क्या देखा, हमने दृश्य देखी, दृश्य में आपने क्या क्या देखा, कलरफुल चीजें देखी, ब्राइटनेस देखी, स्पार्कलिंग देखी. What you hear, क्या सुना, म्यूजिक. म्यूजिक किस चीज का, कि बर्ड्स की चर्पिंग है, रसलिंग है, लीव्स का, बजिंग है. ठीक है. व्हाट यू स्मेल, परफ्यूम, फ्रेश, स्मोकी, अर्थी. व्हाट यू टेस्ट, रिलिश, स्पाइसी, स्वीट, टैंगी. व्हाट यू फील, रफ, स्मूथ, सॉफ्ट, चिली. कि ये चीजें हैं कि हमें क्या क्या चीजें महसूस होती है. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट एंड अंडरलाइन द वर्ब. अब आपको यहाँ पे वर्ब्स को अंडरलाइन करना है. ओके. सो आई शुड डिवाइड द पीरियड इनटू 3 पार्ट. ठीक है. तो यहाँ पे जो आपने मॉडल देखी वो क्या थी, मॉडल वर्ब थी शुड. ऑन द फर्स्ट डे आई शुड वॉन्ट टू सी. अब मैं यहां देखना चाहती हूं, ये चाहिए, शुड पे करेंगे. द नेक्स्ट डे आई शुड अराइज विद द डॉन. आई शुड बी होल्ड विद अ. अब यहां पे जो शुड आपने देखा ये है मॉडल वर्ब. ठीक है, जो मॉडल वर्ब है. और जहां एक और आप देख रहे हैं डिवाइड, सी, अराइज, बी होल्ड मतलब सी. इनका मतलब होता है ये है मेन वर्ब. क्या है बेटा, ये वर्ब. ठीक है. ये है मॉडल वर्ब, मॉडल्स. ठीक है. चाहिए वर्ब. वर्ब मतलब कोई काम
का होना, किसी एक्शन का होना। तो आई शुड डिवाइड द पीरियड इनटू 3 पार्ट्स, कि मुझे मैं क्या करूंगी, मैं जो दिन का जो 3 दिन है उनको डिवाइड कर लूंगी। डिवाइड मतलब अलग अलग हिस्सों में बांट लूंगी। ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन आई शुड वांट टू सी, पहले दिन मैं देखना चाहती हूँ, ठीक है। द नेक्स्ट डे आई शुड अराइज विद द डॉन, कि अगले दिन मैं कैसे उठूंगी, मैं सुबह जल्दी उठ जाऊंगी। आई शुड बी होल्ड विद, कि मैं बिल्कुल एक तरीके से मैग्निफिसेंटली चीजों को, दृश्य को देखना चाहती हूँ। So the word you have underlined are a combination of two verbs. In each of these sentences, should is the modal verb जो suggestion कर रहा है, and the second verb divide, want, arise, ठीक है, ये वॉन्ट, अराइज, बी होल्ड इज द मेन वर्ब। ये क्या है, मेन वर्ब है, जिससे किसी काम के करने का पता चल रहा है। सो मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं, मॉडल वर्ब्स आर एक्सिलरी वर्ब दैट एक्सप्रेस नेसेसिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन और एबिलिटी। मतलब शुड का इस्तेमाल पता आप कर सकते हैं, शुड आप कहां कहां लगाएंगे, जब किसी चीज की नेसेसिटी हो, मैंने बताया ना कि ये आपको करना चाहिए। जब किसी चीज की पॉसिबिलिटी हो कि मैं ये चीज वहां देखूंगी या मुझे दिखेगी, परमिशन मांग रहे हो कि हाँ मैं कहीं जाने के लिए, कुछ करने के लिए मुझे परमिशन चाहिए, आप एबिलिटी बता रहे हो कि मेरे अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए। तो इन चीजों के लिए हम किसका यूज करते हैं, मॉडल्स का यूज करते हैं, ठीक है। दे आर यूज बिफोर द मेन वर्ब टू गिव एडिशन इंफॉर्मेशन अबाउट द फंक्शन ऑफ मेन वर्ब। अभी शुड के लिए नहीं है, ये कई चीजों के लिए है। अब शुड का इस्तेमाल तो कहां होगा, जब हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं, ठीक है, एडवाइस दे रहे हैं, कहीं को सजेशन दे रहे हैं, तो इन चीजों में हम शुड का यूज करेंगे। और जो चीजें अभी पीछे देख लेंगे, अभी मैंने आपके लिए एक कॉलम बनाया है। सो इन चीजों क्या कहते हैं, मॉडल वर्ब्स को, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ऑट टू। जहां भी आपको ये वर्ड्स दिखाई दे, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ऑट टू, ये चीजें क्या है, ये है मॉडल्स, मॉडल वर्ब्स, ठीक है। हाँ जी, आइडेंटिफाई द मॉडल वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, चूज द फंक्शंस दे एक्सप्रेस फ्रॉम दोज गिवन इन द बॉक्स बिलो, ठीक है। पॉसिबिलिटीज, नेसेसिटी, पोलाइट रिक्वेस्ट, एबिलिटी, मोरल ऑब्लिगेशंस। इन हम वर्ड्स को पढ़ेंगे, सेंटेंसेस को पढ़ेंगे और पता लगाएंगे कि इनमें से कौन पॉसिबिलिटी को बता रहा है, कौन नेसेसिटी के लिए बोल रहा है, कौन पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए बोल रहा है। तो देखो, यू कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस, कि तुम इस एक्सपीरियंस से बहुत कुछ आप क्या करोगे, आपको बहुत कुछ चीजें याद होंगी, बहुत कुछ चीजें आपको एक्सपीरियंस होंगी इस चीज से। तो ये क्या बता रहे हैं, ये आपको बता रहे हैं कि पॉसिबिलिटी है। तो इसमें जो कैन है वो मॉडल वर्ब है, और फंक्शन क्या है, एबिलिटी। ये क्या बता रहे हैं, आपकी एबिलिटी, ठीक है। दे माइट अराइव लेट ड्यू टू ट्रैफिक, माइट, यहां माइट क्या है, मॉडल वर्ब, की पॉसिबिलिटी है कि ट्रैफिक की वजह से वो क्या हो जाएंगे, लेट हो जाएंगे, पॉसिबिलिटी है। शी मस्ट फिनिश हर होमवर्क बिफोर डिनर, कि उसने अपना जो, उसको क्या, अपना जो होमवर्क है वो डिनर से पहले ही खत्म करना पड़ेगा। तो मस्ट यहाँ पे क्या बता रहे कि नेसेसिटी है, कि उसको जरूर अपना जो खाना है वो खत्म कर लेना चाहिए डिनर से पहले पहले, ठीक है। दे ought टू क्या है, मॉडल वर्ब है, टू अपॉलॉजी फॉर देयर मिस्टेक, कि अपनी गलती के लिए माफी मांगना चाहिए। तो ये क्या है, मोरल ऑब्लिगेशन है। उसके बाद है ही वुड लाइक टू हैव सम लस्सी प्लीज, कि उसको कुछ लस्सी पीने को चाहिए होगा। तो ये क्या है, पोलाइट रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो यू कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस, एक एबिलिटी के बारे में बताया जा रहा है जहां हम कैन का यूज करेंगे। दे माइट अराइव लेट ड्यू टू ट्रैफिक, ये पॉसिबिलिटीज है जिसमें हम माइट का यूज कर रहे हैं। शी मस्ट फिनिश हर होमवर्क बिफोर डिनर, की नेसेसिटी है तो मस्ट आएगा। दे ought टू अपॉलॉजी फॉर देयर मिस्टेक, या मोरल एक ऑब्लिगेशन बताया गया जहां हम ought टू का यूज करेंगे। ही वुड लाइक टू हैव सम लस्सी प्लीज, हम पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं तो वहां वुड का यूज करते हैं, ठीक है। Read the situations column 1 and function in column 2. Fill in the blank in sentence in column 4 with appropriate modal verb from column 3. After filling in the blank, explain the function of each modal verb you used into your classmate and the teacher. तो basically हम models कर रहे हैं. So you want to leave work early.
यू वॉन्ट टू लीव वर्क अर्ली, कि तुम अपने काम से जल्दी जाना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ परमिशन चाहते हैं ना, सो इसमें हम कौन सी वर्ड्स का यूज करते हैं, कैन, कुड, मे आई लीव अर्ली टूडे इफ आई फिनिश ऑल माई टास्क, कि अगर मैं अपना सारा काम खत्म कर लूं तो क्या मैं जल्दी जा सकती हूं। तो इसमें हम क्या यूज कर रहे हैं, मे। जब कोई परमिशन हमें मांगनी होती है तब हम मे का यूज करते हैं। यू हैव एन इम्पोर्टेंट डेडलाइन टुमारो, कि कल तुम्हारी एक इंपॉर्टेंट डेडलाइन है, जिसमें हम मस्ट और ought to का यूज करते हैं। आई मस्ट फिनिश दिस रिपोर्ट बाय टुमारो, कि मुझे जरूर है, नेसेसिटी है कि मुझे ये जो रिपोर्ट है कल तक खत्म करनी पड़ेगी। योर फ्रेंड इज थिंकिंग वेदर टू ज्वाइन आर्ट क्लास, कि तुम्हारा फ्रेंड है वो सोच रहा है कि तुम्हें आर्ट क्लास ज्वाइन कर लेनी चाहिए या उसे आर्ट क्लास ज्वाइन कर लेनी चाहिए। तो ये एडवाइस है। एडवाइस में हम शुड और ought to का यूज करते हैं। यू शुड कंसिडर ऑल द प्रोज एंड कॉन्स बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। देयर आर डार्क क्लाउड्स इन द स्काई, ये पॉसिबिलिटीज है। सो इट माइट रेन लेटर टूडे, कि हो सकता है बारिश हो जाए, भाई डार्क क्लाउड्स है ना। आस्किंग समवन टू पास द सॉल्ट एट द डिनर टेबल, सो ये पोलाइट रिक्वेस्ट है जिसमें शुड, विल, वुड का यूज करते हैं। सो वुड यू पास द सॉल्ट प्लीज। एडवाइजिंग समवन टू अपॉलॉजी फॉर अ मिस्टेक, मोरल एप्लीकेशन है तो शुड का यूज करेंगे, यू शुड अपॉलॉजी फॉर द मिस्टेक यू मेड। डिसाइडिंग वेयर टू गो फॉर पिकनिक, तो सजेशन है, सेल का यूज करेंगे, वी शैल गो टू एनी पार्क नियर बाय फॉर पिकनिक। और आपकी जो टीचर है, क्लास टीचर है, वो जरूर आपको इस चैप्टर कराते वक्त आपको मॉडल्स कराएंगे, तो ध्यान से करिएगा, लास्ट तक आपके काम आते हैं। You will listen to a conversation between a mother and son. Okay. As you listen, select 4 true statements from 1 to 7 given below. तो ये ट्रांसक्रिप्ट देखिए पेज नंबर 41 में, आप अपने पेज नंबर 41 पे जाओगे बुक में तो आपको ये दिखाई देंगी। तो ये कुछ बातें हैं कि जो एक बच्चा और एक मदर कर रहे हैं। सो अनुज फाइंड द कंसेप्ट ऑफ ब्रेल्स फैसिनेटिंग एंड वांट्स टू लर्न मोर अबाउट इट, मतलब उस पहले आपको पढ़ के आपको पता चलेगा, ठीक है। तो पेज नंबर 41 पे है आपके पास। सो अनुज इनिशियली थिंक्स दैट डिजिटल इंडिया इज ओनली अबाउट लर्निंग हाउ टू यूज कंप्यूटर्स। मदर बिलीव दैट स्क्रीन रीडर्स आर वेरी इफेक्टिव फॉर पर्सन हु आर विजुअली इम्पेयर्ड, ठीक है, स्क्रीन रीडर। तो ये सब चीजें 3 लाइन है उस पैराग्राफ से। A descriptive paragraph describe a person, place, object or event to create a memorable experience for the reader. अच्छा, हम एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखते हैं तो उसमें पता है क्या होता है, उसमें हमें हर चीज का, प्लेस है चाहे पर्सन है, ऑब्जेक्ट है, उसका एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस मिलता है। जैसे अगर मैं नैनीताल घूमने गई हूं तो मैं उसका पूरा डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखूंगी कि अच्छा मैंने वहां ये देखा था, मैंने ये फील किया था, ये खाया था, वहां मैं इन लोगों से मिली थी, वहां का टच ऐसा था, वहां की फील ऐसी थी। तो इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, कि जब आप सारा एक्सपीरियंस लिख रहे हो, रीडर अपना सारा एक्सपीरियंस लिख रहा है, तो ऐसे ही हम एक पैराग्राफ लिखते हैं। विजिट टू द मैजेस्टिक हिल स्टेशन, मैजेस्टिक मतलब बिल्कुल ही जादूगर हिल स्टेशन, मनाली। So last month I had the chance to visit Manali, a breathtaking hill station nest in the Himalayas, कि हिमालयाज की गोद में है ये, ठीक है। The moment I arrived, the cool breeze and the scent of pine tree welcomed me like an old friend, कि अब मैं यहाँ फील कर रही हूँ, मेरे को महसूस हो रहा है, मैं स्मेल कर पा रही हूँ पाइन ट्रीज का सेंट, मतलब सेंट उसकी जो महक आ रही है पाइन ट्रीज की, कूल ब्रीज को मैं फील कर पा रही हूँ। द स्नो कैप्ड माउंटेन स्पार्कल अंडर द गोल्डन सनलाइट, अब मेरे पास आंखें हैं तो मैं देख रही हूँ कि जो माउंटेन्स हैं उनको स्नो ने ऐसे कैप की तरह ढक रखा है, ठीक है। गोल्डन सनलाइट एंड द गजलिंग बीज ब्यास रिवर sang a soothing melody, और वहां पे एक ब्यास रिवर है, उसकी जो वो बह रही है एक सूदिंग मेलोडी है। आई कुड हियर बर्ड्स चीपिंग, लीव्स रसलिंग एंड द लाफ्टर ऑफ टूरिस्ट एंजॉयिंग द सीनिक ब्यूटी, द क्रिस्प माउंटेन एयर स्मेल्ड फ्रेश एंड अर्दी, एंड आई स्टिल रिमेंबर द डेलिशियस टेस्ट ऑफ हॉट मैगी, स्टीमिंग मोमोज सर्व्ड एट अ रोड साइड स्टॉल, टचिंग द सॉफ्ट स्नो फेल्ट लाइक ब्रशिंग अगेंस्ट लोफी कॉटन। माई visit to Manali was unforgettable. The most important thing I took back was the
peace and joy nature can bring. Everyone should visit such places to reconnect with the beauty and calm of the natural world. जैसे मैंने मनाली का लिखा है, आप जिस भी जगह पे गए हो वहां आपने क्या क्या फील किया है, क्या देखा है, किस चीज ने आपको इमोशनल किया है, वो सारी चीज आप लिख दोगे तो इसको हम कहेंगे डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, कि आपने बिल्कुल जो आपको सेंसरी आपके जो मोटर्स हैं उन्होंने आपको जो फील कराया वो आपने पूरा लिख दिया। नेक्स्ट है ब्रेल, ये है लुइस ब्रेल, जिन्होंने ऐसे जो लोग देख नहीं सकते उनको पढ़ने का तरीका बताया, ठीक है, इसको ब्रेल स्क्रिप्ट बोलते हैं। सो डू यू नो हाउ पर्सन विद विजुअल चैलेंजेस आर एबल टू रीड एंड राइट? दे रीड थ्रू टच विद द हेल्प ऑफ ए ब्रेल, अ कोड ऑफ रेज डॉट एंड रिप्रेजेंट द लेटर ऑफ द अल्फाबेट। दिस tactile code was developed over a period of 9 years by Louis Braille, who became blind at a very young age due to an accident। कि इनकी आंख में एकदम से कुछ सुई या कुछ चला गया था, जिसकी वजह से ये क्या हो गए थे, अंधे हो गए थे, इनको दिखता नहीं था। और फिर उन्होंने 9 साल लगा के एक ऐसे स्क्रिप्ट का इन्वेंशन किया जिससे जो लोग देख नहीं सकते वो भी इसको पढ़ सकते हैं। सो ये कुछ कोड थे, आप देख सकते हो। आपकी मैम इनको बनाने के लिए भी देंगी कि आपको ABCD A से लेकर Z तक लिखना है, फिर वो 0 से लेकर 9 तक आप नंबर्स को कैसे लिख सकते हो वो सब आपको देखना है। फिर आप अपनी आंखें बंद करोगे, उसको टच करके फील करके महसूस की कितना लिखा हुआ है, A लिखा हुआ है, B लिखा हुआ है। A में देखो 1 डॉट है, B में देखो 2 डॉट है, C में ऊपर वाले 2 डॉट है, D में देखो ऐसे बना हुआ है, C में ये ऐसे क्रॉस वाला है। तो आप वो टीचर करवाना सिखाएंगी, आप देखिएगा। Have you heard about the International Day of Person with Disabilities? कभी आपने सुना है कि हम International Day of Persons with Disabilities एक डे भी मनाते हैं इंटरनेशनल? Find out when and how it is observed in India. इंडिया में कब मनता है? So International Day of Person with Disabilities ये हम मनाते हैं 3 दिसंबर को, हर साल 3 दिसंबर को इसको हम मनाते हैं, ठीक है। सो पर्पस क्या है? दिस डे सेलिब्रेटेड टू प्रमोट द राइट्स एंड वेल बीइंग ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज। अच्छा, किसी भी डे को मनाने का उसके पीछे एक ही पर्पस होता है कि हम उस दिन को उन लोगों के अधिकारों को प्रमोट कर सके, सेलिब्रेट कर सके जो उनको सोसाइटी ने दिए हैं डेवलप होने के लिए, मतलब जो उनकी सोसाइटी में बनते हैं, सोसाइटी देती नहीं, जो बनते हैं। इट ऑल्सो एम्स टू रेज अवेयरनेस अबाउट द चैलेंजेस फेस्ड बाय पीपल विद डिसेबिलिटी। हाउ इट इज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? सो इन इंडिया दिस डे इज मार्क्ड बाय वेरियस इवेंट, अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं, एक्टिविटीज कंडक्टेड बाय स्कूल, NGO, गवर्नमेंट बॉडीज। सम कॉमन एक्टिविटीज इंक्लूड, क्या क्या होता है? अवेयरनेस रैलीज, स्ट्रीट प्ले होते हैं, कल्चर प्रोग्राम्स होते हैं, इंक्लूसिव कॉम्पिटिशन्स होते हैं, सेमिनार, वर्कशॉप होती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एड्स एंड असिस्टिव डिवाइस होती हैं, ऑनरी अचीवर्स विद डिसेबिलिटीज होती है कि जिन लोगों ने या जिन बच्चों ने इन चीजों में कुछ महान काम कर रखा होता है तो उनको अवार्ड दिए जाते हैं। द डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट प्ले अ की रोल इन ऑर्गेनाइजिंग दीज इवेंट्स। थीम क्या होती है? एवरी ईयर द यूनाइटेड नेशन अनाउंस अ थीम फॉर दिस डे। हर एक दिन, हर एक जो हम ये वाटर डे, अर्थ डे, एनवायरमेंटल डे, जो भी कुछ हम ऐसा मनाते हैं इसकी एक थीम होती है, और उस थीम को अनाउंस कौन करता है? यूनाइटेड नेशन, ठीक है। तो एक थीम होती है, उसके हिसाब से हम चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं। द थीम हाईलाइट डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ इंक्लूजन, एम्पावरमेंट एंड एसिबिलिटीज। और इस जो थीम होती है, जो गिवन होती है, उसमें यही बताया जाता है कि हम कैसे इन चीजों को और उत्साहित कर सकते हैं, इनको कैसे जीवन की धारा से जोड़ सकते हैं, इनके लिए हर चीज कैसे आसानी से बनाया जा सकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा जो लोग चल नहीं पाते, स्कूलों में या बसेस में या हर जगह अब तो जहां सीढ़ियां बनी हुई है वहीं पे इन लोगों के लिए ऐसे रैंप लगे होते ताकि आराम से अपनी व्हीलचेयर चल सके। व्हीलचेयर बहुत सारे स्कूलों में, अस्पतालों में अधिक मात्रा में होते ताकि जो लोग ऐसे हैं जो चल नहीं सकते या उनको परेशानी है वो इन व्हीलचेयर्स का यूज कर सकते हैं। तो ऐसे हम उनको भी अपनी तरह ही जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करते कि वो भी सोसाइटी का पार्ट है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। सो आज के लिए इतना रखते हैं। आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।